إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، یقیناً سارے کے سارے انسان البتہ خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کیے، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیے۔ حاضرین جمعہ و حاضرات، میں اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو اس بات کی وصیت کرنا چاہتا ہوں جس کی وصیت اللہ عز و جل نے اگلوں اور پچھلوں کو کی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب اور تم کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا تقوی اور اس سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اپنی زندگی کے جملہ امور میں، چاہے وہ اقوال ہو یا افعال، حرکات ہو یا سکنات، اپنے جملہ امور میں، چاہے اس کا تعلق آپ کے دوست سے ہو، چاہے اس کا تعلق آپ کے دشمن سے ہو، چاہے اس کا تعلق اپنوں سے ہو یا غیروں سے ہو، اپنے جملہ امور میں اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کے غضب اور اس کے غصے سے بچو۔ یہی وہ تقوی ہے جو شاہی کلید ہے، جس سے سارے کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اور اسی تقوی پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اور اسی تقوی سے معاملات آسان ہوتے ہیں۔ ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دے گا، اور اسی تقوی پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی جانب تیز دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس سے متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے، اپنے جملہ امور میں اس کا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادر اسلام و خواتین، ہماری عمریں یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہی وہ عمر ہے
جو آخرت کی کھیتی ہے، یہ وہ پونجی ہے جس کا صحیح استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو خیر الناس میں شامل کر سکتے ہیں، اور یہی وہ پونجی ہے جس کا غلط استعمال کر کے العیاذ باللہ شر الناس میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی اور جس کا عمل اچھا ہے وہ خیر الناس ہے، لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور یہ پوچھا گیا وَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، بدترین قسم کے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہے اور اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا عمل خراب ہے، تو وہ شر الناس میں ہے۔ عمر کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں، یہی وہ عمر ہے جس کے مختلف اجزاء کی رب العالمین نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ واللیل اذا یغشی، قسم رات کی جب وہ ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی، قسم دن کی جب روشن ہو جائے، والضحیٰ، چاند کی قسم ہے، والفجر، فجر کی قسم ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے، جو عمر شریف اور عمر عزیز تھی، اور کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی آپ کی عمر کی قسم، یہ لوگ خواب و غفلت میں مدہوش ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ عمر جو ہمیں ملی ہے، یہ عمر کتنی عزیز ہے، یہ کتنی اصل پونجی اور کتنا قیمتی سرمایہ ہے جس سے ہم بے تحاشا ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ اس عمر کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ آپ کو کتنی بھی تکلیف ہو، آپ پر کتنی بھی مصیبت آئے، کیسی کیسی بیماری کیوں نہ ہو، کبھی آپ یہ تمنا نہ کریں کہ آپ کو موت آ جائے اور عمر ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتمنى احدكم الموت، لا يتمنى احدكم الموت، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، لضر نزل به، کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے جس میں وہ مبتلا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ، اگر موت کا تمنا کرنا ضروری ہے، زمین اپنے وسعت کے باوجود آپ پر تنگ ہو چکی ہے، ایسے وقت میں موت کا تمنا کرنے کے بجائے یہ کہو اللہم ان کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ اگر یہ حیات میرے لیے بہتر ہے احیینی، مجھے زندہ رکھ، وَإِن كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي وَإِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اگر دنیا سے چلے جانا میرے لیے بہتر ہے پھر تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ معاملے کو، زندگی کو زندگی بنانے والے کے حوالے کر دیجئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس عمر کی جسے ہم بے تحاشا خرچ کرتے رہے ہیں، جس کے جانب ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، اس عمر کی کس قدر قدر و قیمت ہے دین اسلام کی نظر میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کی عیادت کی تشریف لے گئے۔ بیماری سخت تھی، انہوں نے اپنے بھتیجے کو دیکھا، موت کی تمنا کرنے لگے، مجھے موت کی نہیں آ رہی ہے، اللہ کرے جلد موت آ جائے، میں بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا عباس، یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، لا تتمنى الموت، موت کی تمنا نہ کرو، فإن كنت محسنا، اگر تم نیکوکار ہو، زندہ رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، تزداد احسانا الى احسانک، نیکیوں میں تمہارا اور اضافہ ہوگا، وإن كنت مسیئا، اگر تم برے ہو تو زندہ رہنے سے ممکن ہے تمہیں توبہ کی توفیق مل جائے، فہذا خیر لک، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اس زندگی کی کتنی قدر و قیمت ہے،
इसकी कितनी अहमियत है। यही वो जिंदगी है जो हमारा असल सरमाया और असल पूंजी है। पूंजी जिस कदर ज्यादा होती है, इंसान उसी कदर कारोबार करता है, उसी कदर तिजारत को फैलाता है। सलफ में से इसी से पूछा गया, अताबल मौत, क्या मौत अच्छी बात नहीं है? कहा यब्न अखी ला तफअल, ऐ मेरे भतीजे ऐसी बात मत कहो कि मौत अच्छी चीज है। लसाअतुन तईशु फीहा तस्तगफिरुल्लाह खैरुल लका मिन मौति दहर, एक घड़ी जिसमें तुम जिंदा रहो, अल्लाह ताला से इस्तिगफार कहो, अस्तगफिरुल्लाह कहो, ये जमाना भर की मौत से कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है। मौत आने के साथ ये सारे के सारे सिलसिले बंद हो जाते हैं। इसीलिए बाद सलफ को मौत के वक्त में नज़ा के आलम में रोते हुए देखा गया। पूछा गया, क्या आप मौत से घबरा रहे हैं? कहा नहीं, मौत से नहीं घबरा रहा हूं। अफसोस इस बात की है कि नेकियों के करने का वक्त खत्म हो जा रहा है, इस्तिग़फ़ार और तौबा के दरवाजे मेरे लिए बंद होते हुए जा रहे हैं। किसी बुरे शख्स से कहा गया कि अब तुम मौत की तमन्ना कर रहे होगे। कहा नहीं, कहा जवानी और उसका सर खत्म हो चुका, बुढ़ापा उसका खैर आ चुका है। जब मैं खड़ा होता हूँ कहता हूँ बिस्मिल्लाह, जब मैं बैठता हूँ कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये सिलसिला जारी रहे। हाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये जिंदगी जो हमें मिली है कितनी अजीज है, ये उम्र जो हमें मिली है कितनी कीमती है, और इस उम्र का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए। इस सिलसिले में अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो कौल है जिसमें आप कहते हैं कि मा नदिमतु अला शै नदमी अला यौमिन गरुबत फीहि शम्सुहा, मा नदिमतु अला शै नदमी अला यौमिन गरुबत फीहि शम्सुहा, कि मुझे किसी ऐसे दिन पर नदामत नहीं हुई जितनी नदामत उस दिन पर हुई जिसका सूरज तो डूब गया। नक़सा फीहि अजली वलम यज़द फीहि अमली, मेरी उम्र तो खत्म हो गई लेकिन मेरे अमल में कोई इजाफा नहीं हुआ। रोजाना अपना मुहासबा कीजिए कि आज के रोज हमने क्या नेकी की है, क्या हमारी नेकियों में कुछ इजाफा हुआ है, क्या हमारी नेकियों में हमने कुछ ज्यादती की है। तो लिहाजा अपना नफ्स का मुहासबा करते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से पूछते थे। एक मर्तबा सुबह की नमाज के बाद आपने पूछा, तुम में से कौन है कि जिसने आज सुबह इस हालत में की है कि वो रोजेदार हो? लोग खामोश थे। और बकर रज़ी ने कहा, अना, मैं आज रोजे से हूं। कहा, तुम में से कौन है जो आज किसी जनाजे के पीछे चला हो? सब खामोश रहे। और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने कहा कि मैं हूं। फिर आपने कहा, तुम में से कौन है जो आज किसी मिस्कीन को खिलाया है? लोग खामोश रहे। और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने कहा कि मैं हूं। फिर आपने पूछा कि तुम में से कौन है जो आज किसी बीमार की आदत की हो? लोग खामोश रहे। और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने कहा कि मैं हूं। तो आपने फरमाया, ये चीजें जब किसी इंसान में जमा हो जाती है फिर ये चीजें उससे जन्नत में ले जाती हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए अपने इस उम्र अजीज का सही इस्तेमाल करें, इसको ज़ाय होने से बचाएं। खास तौर से ऐसे दौर में जबकि फितने सर उठा रहे हैं, जबकि फितने इंसानों को, घरों को, माशरे को अपने लपेट में ले रहे हैं। उम्र अजीज के सही इस्तेमाल के लिए सबसे पहली और बुनियादी बात यह है, हम अपने इस उम्र अजीज में अल्लाह के फराइज में कोई कोताही न करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने 5 नमाजें फर्ज की है, इनमें कोई कोताही नहीं हो। रब्बुल आलमीन ने ज़कात फर्ज किया है, इसमें कोई कोताही नहीं हो। रमजान के रोजे फर्ज है, इसमें कोई कोताही नहीं हो। इस्तिताअत हो तो हज फर्ज है, और बाज अहले इल्म के पास उम्रा भी फर्ज है, इसके अंदर कोई कोताही न हो। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक फर्ज है,
इसमें कोई कोताही नहीं हो। हुकूक की अदायगी वाजिब है, इसमें कोई कोताही नहीं हो। हदीस शरीफ में है, हदीस कुदसी है, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, मन आदली वलियन फकद आज़मतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी की, मैंने उससे जंग का ऐलान कर दिया है। फिर हदीस में यह है, मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा अफ्तरस्तु अलैहि, मेरा बंदा मेरा तक़र्रुब चाहता है, मेरा नजदीकी चाहता है, तो सबसे बेहतर यह है कि जो मैंने उस पर फर्ज किया है उसकी वो पाबंदी करे, उसमें कोई कोताही न करे। सईद इब्न मुसैयब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, 50 साल से तकबीर तहरीमा नहीं छूटी और किसी इंसान के पीछे में नमाज नहीं पढ़ा, सफ़े अव्वल की मैं पाबंदी कर रहा था। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इस उम्र का सही इस्तेमाल करना है और कारोबार में मनफात हासिल करना है, तो फिर हमें ये चाहिए फराइज की पाबंदी करें और उसी के साथ मुहर्रमात से बचें। गीबत, चुगली, हराम कमाई, सूद का खाना, इस किस्म के कैसे कैसे मुहर्रमात हैं जो हमारे माशरे में, हमारे जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, इनसे बचने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है, नवाफिल के जरिए से अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करें। इंसान जब नवाफिल के जरिए से अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करता है तो उसके नतीजे में अल्लाह अज़्ज़ व जल की हिमायत उसे हासिल होती है। हदीस शरीफ में है, बंदा बराबर नवाफिल के जरिए से मेरा तक़र्रुब हासिल करता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ, उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। यानी मैं उसके हाथ, उसके पाँव, उसके कान, उसके आंख की हिफाजत करता हूँ। आप अल्लाह की हिमायत में आ जाते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए नवाफिल और सुनन के जरिए से अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि जो छोटी छोटी नेकियां हैं, इन नेकियों में पीछे न रहें, खास तौर से जिक्रुल्लाह, ला यज़ालु लिसानु का रातबन बिज़िक्रिल्लाह, अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र में तरोताजा रखो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके लिए कोई वक्त नहीं है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं है। हमारे जुबान बराबर जिक्र इलाही में मशगूल रहे, उठते और बैठते, चलते और फिरते, लेटते और सोते हुए जुबान पर एक कलिमात जारी रहे। और ये वो किला है मजबूत, जब इंसान अल्लाह के जिक्र की पाबंदी करता है, वो अल्लाह के मजबूत किले में दाखिल हो जाता है, हिस्न हसीन में दाखिल हो जाता है। इसी तरीके से तौबा और इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लें, इससे बेहतर कोई वजीफा नहीं है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी अमल से इस कदर खुश तो होता है जितना कि बंदा के तौबा और इस्तिग़फ़ार से खुश होता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इससे दिल में जो मैल पहले दूर हो जाता है, इससे गुनाह धुल जाते हैं, इससे चेहरे पर रौनक, दिल में नूर पैदा होता है। तो एक तरफ जिक्र को अपनाइए, दूसरी जानिब तौबा और इस्तिग़फ़ार को अपनाइए। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के ताल्लुक से आता है, इनके शागिर्द इब्न क़य्युम कहते हैं, एक रोज मैंने इनके साथ सुबह की नमाज पढ़ी और वो वहीं बैठते हुए दिन के करीब आधे हिस्से तक अल्लाह के जिक्र में लगे रहे। फिर मेरे जानिब पलटे और कहा, यही मेरा नाश्ता है, और अगर मैं नाश्ता न करूं तो मेरा जिस्म कमजोर हो जाएगा। तो अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जानिब लौटने से, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करते हुए अपने अंदर कुव्वत और ताकत पैदा कीजिए और अपने मसाइल को हल कीजिए। अलगर्ज, ये जो उम्र अजीज मिली है, इस उम्र अजीज को हम फराइज की पाबंदी करते हुए, नवाफिल का अहतमाम करते हुए, कसरत से जिक्र करना, जिक्र के लिए कसरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन, कसरत से जिक्र करना है। और कसरत से जिक्र तभी होगा जब आप हर हालत में अल्लाह का जिक्र करें और तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। और इस तरीके से इसके साथ हम अपने उम्र अजीज का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सिलसिले में एक आखिरी बात यह है कि आपने
इस उम्र अजीज का सही इस्तेमाल करना है तो खास तौर से ऐसी औकात और ऐसी इबादतों को देखिए जिससे इस उम्र में इजाफा होता है। रमजान का आखिरी अशरा है, इसमें लैलतुल क़द्र से आपके उम्र अजीज में 84 साल का इजाफा होता है। और इस तरीके से ये जो शव्वाल के 6 रोजे हैं, या कि जुमरात के रोजे हैं, या पीर के रोजे हैं, या जिलहिज्जा के 9वीं तारीख का रोजा है, या एक आशुरा का रोजा है, ये जो नेकी के मवासिम है इनकी पाबंदी कीजिए। इससे हमारे नेकी की उम्र में और इजाफा होता है। और इसी के साथ उन आमाल की जानिब तवज्जो दीजिए कि दुनिया से जाने के बावजूद नेकियों का सिलसिला जारी होता है। इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है अमल का सिलसिला खत्म होता है मगर 3 चीजों से, सदका जारिया, कोई वक्त बना दे जिससे बराबर इस्तेफादा हो रहा, मस्जिद बना दी इस्तेफादा हो रहा है, कोई कुआं खुदवा दिए लोग पानी पी रहे हैं, ये सदका जारिया से आपके जाने के बाद भी नेकियों का सिलसिला, सवाब का सिलसिला जारी होता है। और इल्म युंतफ़अ बिही, या कोई इल्म छोड़ कर जाए जिससे फायदा उठाया जाता है। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा अहम है, और वलदिन सालिहिन यदउ लह, कि आप नेक लड़के को छोड़कर जाए, उसकी तरबियत करें और उसको अच्छा इंसान बनाएं। गरचे आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन इसकी वजह से सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। तो लिहाजा हमें चाहिए इन सारी बातों की तरफ तवज्जो दें। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल अस्र, सारे के जमाने की कसम, सारे के सारे इंसान घाटे में हैं सिवाय उनके जो ईमान लाए। पहली बुनियादी बात ईमान है। उम्र अजीज का सही इस्तेमाल के लिए ईमान चाहिए। ईमान नहीं है, बड़ी से बड़ी नेकियों का कोई हिसाब नहीं है। ईमान है, छोटी से छोटी नेकी करेंगे अजर व सवाब हासिल करेंगे। और दूसरी बात अमल सालेह, इसकी तफसील गुजर चुकी है। तीसरी बात एक दूसरे को हक की ताकीद करना, दावत इल्लाह, अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना, लोगों को नेकियों के जानिब बुलाना, नमाज के लिए बुलाना। दावत इल्लाह से हमारी भी हिफाजत होती है, हमारे मुआशरे की भी हिफाजत होती है। और आखिरी बात यह है कि इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए सब्र की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सब्र ज़िया, सब्र रोशनी है। और ये भी आपने फरमाया किसी को सब्र से बढ़कर बेहतरीन अतिया नहीं दिया गया है। रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कहने और सुनने से ज्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम। इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।